کہ ایمانداروں کی درینا خواہش جس کا ہم کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ بلاول جو کہ ووٹ کے ایماندار بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی خوبصورت گرجا گھر چاہیے، تو آج خدا ان کی برکت کے ساتھ، خدا ان کی یسوع مسیح کے فضل کے ساتھ وہ خواب آج پورا ہونے کو جا رہا ہے۔ تو آج اس خواب کے پورا ہونے کی خوشی کے لیے آج ہم نے اپنے درمیان فضیلت مآب آرچ بشپ ڈیڈی ماریو ٹریوس جو کہ آرچ ڈائسس کراچی کی چھپانے آ رہا ہے، ہم ایک بار پھر زوردار تالیاں بجاتے پتہ چلتا کہ ہم واقعی آج خوش ہیں، دل سے خوش ہیں۔ کا زبور گائیں گے، تیری صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، سب گائیں گے تیری صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، تیری صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ہم نے خدا کی شکر گزاری کی ہے۔ آئے آج جس گھر کی ہم گراؤنڈ پیکنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اسی گھر کے لیے کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت سنیں گے۔ میں شہریار سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے آج کی کلام پاک کی تلاوت جو ہے ہمارے لیے پڑھیں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت پہلا ملوک اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ اور ایسا ہوا کہ ملک مصر سے بنی اسرائیل کے نکلنے سے 480 برس بعد اسرائیل پر سلیمان کی بادشاہی کی 4تھے برس کے ذیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے، اس میں خداوند نے اپنا گھر بنانا شروع کیا، اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خدا کے لیے بنایا اس کا طول 60 ہاتھ اور عرض 20 ہاتھ اور بلندی 30 ہاتھ تھی، اور ہیکل کے آگے برآمدہ گھر کے عرض کے برابر طول میں 20 ہاتھ اور گھر کے آگے عرض میں 10 ہاتھ، اور گھر کے لیے جھرونکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور گھر کی دیوار سے لگی ہوئی منزلیں بنائیں، یعنی ہیکل کے الہام گاہ کے گرد، اور گردا گرد حجرے بنائے۔ نچلی منزل کا عرض 5 ہاتھ اور درمیانی کا عرض 6 ہاتھ اور تیسری منزل کا عرض 7 ہاتھ، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار میں باہر کی طرف گردا گرد پشتے چھوڑے تاکہ شہتیر گھر کی دیوار پر نہ رکھے جائیں۔ اور گھر جب بن رہا تھا تو ان پتھروں سے بنتا تھا جو کان پر تراشے اور تیار کیے گئے تھے، تو گھر کے بناتے وقت ہتھوڑے اور کلہاڑے اور لوہے کے اوزار کی کسی کی آواز سنی نہ جاتی تھی۔ اور نچلی منزل کا دروازہ گھر کی دہنی طرف رکھا گیا، اور گھومتی ہوئی سیڑھیوں سے وہ درمیانی منزل میں جاتے تھے اور درمیان سے تیسرے میں۔ سو اس نے گھر بنایا اور اسے مکمل کیا، اور اس کی چھت دیوار کے شتیروں اور تختوں کی تھی، اور اس نے چاروں طرف گھر سے لگی ہوئی منزلیں بنائیں، ہر ایک کی بلندی 5 ہاتھ تھی، اور وہ دیودار کی لکڑی کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ اسی کے ساتھ میں فضیلت مآب آرچ بشپ ڈیڈی ماریو ٹریوس سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں آج چند ایک باتیں آج کی کلام کی روشنی کے بارے میں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ایک خاص مقصد سے آئے ہیں تاکہ گراؤنڈ بریکنگ سرمنی یہاں پہ کام
इस रस्म के ज़रिए से हम अपनी चर्च की तामीर का सिलसिला शुरू करें। कलाम में हमेशा हमें बताया जाता है, आप लोगों का ईमान है भी, कि जो काम हम खुदा के नाम से शुरू करते हैं खुदा यकीनन हमारी मदद करेगा। और इसी वजह से हम आए हैं ताकि खुदा का नाम लेकर दुआ के ज़रिए से हम इस अहम काम को शुरू करें, जो लोगों के लिए काफ़ी देर से रिक्वेस्ट, काफ़ी देर से हम ये दरख्वास्त सुनते आ रहे हैं कि हमें एक अच्छी जगह इबादत के लिए चाहिए। और हम आज इसी मकसद से आए हैं ताकि इस काम को शुरू करके एक इबादत का यहाँ बिलावल जो कि कोट सफूरा कोट पे हमारे लिए हो। आज के कलाम जो तिलावतें जो पाकमा कलीसिया हमें देती है वो बड़ी खूब है। जो दूसरा सैमुएल से किताब ली गई, आज की पहली तिलावत, उसमें दाऊद नबी अपना तमाम लड़ाई जंग करने के बाद वो बड़ा खुश था क्योंकि उसने सब कुछ अमन और सलामती लेके आया था। और फिर वो एक सोच उसके जहन में आया कि देखो, मैं तो बड़ा खूबसूरत महल में रह रहा हूँ लेकिन खुदा का पाक संदूक खैमा में है, टेंट में है। तो उसने नातान नबी को बुलाकर कहा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं खूबसूरत हैकल खुदा की पाक संदूक के लिए बनाऊं, क्या खुदा की रजामंदी है मेरे साथ? नातान नबी ने शुरू में कहते हाँ ये तो बड़ी अच्छी सोच है, शुरू करो। लेकिन उसी रात को खुदा ने नातान नबी से कलाम किया और वो कहने लगा, क्या दाऊद मेरे लिए खुदा का घर बनाएगा? खुदावंद कहता है कि दाऊद की सोच जरा देखो, इंसान खुदा के लिए एक जगह बनाएगा नहीं, बल्कि खुदावंद कहता है आज की तिलावत में कि मैं आज दाऊद को दिखाऊंगा कि मैं उसकी नस्ल को अब तक कायम रहूंगा। जरा देखो, इंसान की सोच कि मैं खुदा के लिए घर बनाऊंगा, खुदा डबल बरकत देता है कि नहीं, मैं दाऊद की नस्ल को हमेशा कायम रहूंगा। मेरे अजीज़ों, आज जब हम इस मकसद से आए हैं, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हम जो ये सोच लेकर आए हैं, यकीनन इस जगह से हमें डबल बरकत मिलेगी, खुदा की मौजूदगी भी होगी और इस जगह से हमें बरकत भी मिलेगी। तो आए आज हम खुदावन से दुआ करें कि आज हम बड़ी अच्छी नीयत के साथ इस काम शुरू करने को है, ताकि लोगों के लिए एक जगह हो जहाँ पर वो खुदा की इबादत कर सके, और यही जगह लोगों के लिए जमा होने का, कलाम फैलाने का, मसीही बच्चों को तालीम देने की जगह बनेगी। आए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद इस मकसद को, हमारे इस मकसद को बरकत दे। जो काम हम शुरू करें जल्द से जल्द उसे पाए तकमील तक पहुंचाएं। जहां पर हम फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहां लोगों की कोऑपरेशन मांग रहे हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम तय कर सके, ताकि बहुत जल्द लोगों के लिए, हम सब के लिए एक जगह इबादत खाना हो। खुदावंद हमें हमारी इस कोशिश में बरकत अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से। इसी के साथ मैं अपने प्यारे प्रीस्ट एंड फादर एंथनी अब्रास से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च की इस तमीर होने वाले गिरजाघर के बारे में चंद एक बातें बताएं कि किस तरह, किन मरहल से गुजरकर हम इस बड़ी जगह पर पहुँचे हैं। तो फादर जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ, जिन्होंने इस सारे काम को तकमील तक पहुँचाने के लिए अनथक मेहनत की, ताकि बिलावल जोखी गोट के ईमानदारों के लिए भी एक खूबसूरत गिरजाघर जो है वो तामीर होना चाहिए। ज़बूर नवीस फरमाता है कि खुदावंद का शुक्र अदा करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खासकर उसकी रहमत के लिए, उसकी बरकत के लिए, जो कि हमारे आबा अजदाद के वसीला से खुदा ने हम मसीहों को अता फरमाई है। बिशप जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने कलाम के वसीला से हमें बताया कि किस तरह इंसान चाहता है कि वो खुदा के घर को तामीर करे। ज़रूर हमारे इस इलाका में जब मैं तारीख़ पता करता हूँ, जब मुझे पता चला कि जब यहाँ पे जंगल ही जंगल था, लोग अभी आबाद नहीं हुए थे,
ज़्यादातर हमारे मोमिनीन जो है वो मलीर कैंट में रहते थे, और जैसे जैसे मलीर कैंट के बाद उन्होंने अपने घर लेना शुरू किए तो वो इस आबादी की तरफ बढ़े, जो कि मलीर कैंट से बाहर रोड पार करें तो इस आबादी की तरफ आ जाते हैं। और उस वक्त फादर्स ने, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उस वक्त के फादर्स का, उस वक्त के बिशप साहिबान का, कि जिन्होंने कलीसिया के लिए एक मुनासिब जगह ली ताकि वो वहाँ पे इबादत कर सके। साथ ही साथ हमें पता है कि जैसे जैसे लोग यहाँ पे आबादी बढ़ती गई, एक वक्त आया कि जब कोशिश शुरू की गई ताकि हम इस जगह को वसी कर सके, बढ़ा सके। तो उसके लिए खुदावंद के फजल से हमारे पास ये जगह जहाँ पे कि हम बैठे हैं, हमें ये जगह मुहैया हुई। तो उसके बाद बिशप जी के साथ जब मैंने बातचीत की तो बिशप जी ने तमाम तर हर हवाले से जो ताउन था, आप सबको शायद कईयों को पता भी नहीं होगा कि कैसे इंतज़ामात हुए, इस जगह की कीमत कितनी थी, शायद किसी को नहीं पता होगा, मगर बिशप जी की ये लगन थी, क्योंकि वो यहाँ पे रह के गए थे, उन्हें पता था कि यहाँ पे ज़रूरत भी है। तो बिशप जी की ये लगन थी, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे मुझे इकट्ठे करके दिए ताकि मैं यहाँ पे इस जगह को ले सकूँ और उसके बाद यहाँ पे हम बाकायदा तौर पे इबादत का आगाज़ कर सके। शायद मेरे जहन में नहीं था कि सफ़र जो पिछले साल हमने अक्टूबर में शुरू किया था, गालबन 23 अक्टूबर से पिछले साल, वो खुदावंद के फजल से और बिशप जी की बरकत और मेहनत की बदौलत इतनी जल्दी हमारा जो ख्वाब है वो ताबीर की तरफ जाएगा। तो शायद मैं भी इंतज़ार कर रहा था, मैं गाहे बगाहे बिशप जी को याद करवा रहा था कि बिशप जी हमें यहाँ पे वाकई ही ज़रूरत है। आपको पता है कि जब गर्मियों के दिनों में 4 बजे इबादत होती थी तो शेड भी नहीं था, उसके बावजूद भी ये आपकी लगन, आपकी मोहब्बत खुदा के साथ कि आप लगातार यहाँ पे आते रहे और हम यहाँ पे कड़क धूप में और गर्मी में भी 4 बजे दुआ करते रहे। तो साथ ही साथ मैं बिशप जी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस तमाम तर काविश के लिए, हमारी ख्वाब के लिए जो हम ख्वाब देखा करते थे, मगर बिशप जी ने उस ख्वाब को खुदावंद के फजल से पाए तकमील तक पहुँचाया। तो बिशप जी, हम फादर साहिबान, अपनी पास्टरल टीम और टीसीए की तरफ से आपके नहायत मशकूर हैं कि आपने अपना शफकत वाला हाथ हमारे सर पे रखा, ख़ासकर हमारे इस इलाके को तवज्जो दी ताकि जल्द, ठीक है, बहुत देर नहीं बल्कि 1 साल के अंदर ही बिशप जी की कोशिश थी कि यहाँ पे एक खूबसूरत खुदावंद का घर हो और वो हमारी ख्वाब जो है वो उसकी ताबीर बहुत जल्द होने वाली है। तो इसके लिए हम बिशप जी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के मोमिनीन जो कि सफुरागुड के मोमिनीन हैं, आपका ताउन, आपकी लगन बहुत ज़्यादा है खुदा के घर के लिए, ठीक है। आपकी हमेशा गिरजाघर में मौजूदगी, गिरजाघर में इबादत के लिए आना, आपका ताउन ज़रूर हमारे साथ है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि जो हमारा लोकल कंट्रीब्यूशन जिसका मैंने ऐलान किया है कि हर ख़ानदान की तरफ से 10,000 रुपये हमने आपको कहा था कि इस गिरजाघर में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। बिशप जी की तरफ से बड़ा हिस्सा है, मगर हमारी तरफ से जो हिस्सा है, हर ख़ानदान को हमने रिक्वेस्ट की है कि अपना हदिया 10,000 की सूरत में अदा करें। कुछ ख़ानदानों ने दे दिया है, कुछ ख़ानदान आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं और कुछ ख़ानदान जो है उन्होंने अभी शुरू किया है। तो इस तामीर के दौरान, चर्च की तामीर के दौरान ज़रूर जो आपका हिस्सा है खुदा के घर के लिए वो भी आप ज़रूर अदा करें ताकि हम इस बिल्डिंग को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मास्टर जी का भी, हमारी पास्टर टीम का हिस्सा मास्टर सलीम जो कि हमारे साथ हैं, हर वक्त इस इलाके के लिए वो भी सोचते रहते हैं। आइंदा जो हमारी इबादत है हम उनका इंतखाब करेंगे, जैसे ही हम हफ्ते डेढ़ के अंदर काम शुरू करेंगे, इस इतवार की इबादत तो ज़रूर यहीं पे होगी। जब हम इबादत करेंगे तो वहाँ पे जिस जगह का इंतखाब करेंगे वहाँ पे भी आप ज़रूर इबादत के लिए आएँ, ठीक है। गुज़श्ता साल देखा गया कि जब हम गली में भी करते थे इंतज़ाम बहुत अच्छा था, वहाँ पे टेंट लगा के, दरिया बिछा के, ऑल्टर का इंतज़ाम और स्टेज वगैरह बनाना सब कुछ, मगर मोमिनीन पता नहीं क्यों शायद महसूस नहीं करते कि वहाँ पे इबादत, ठीक है, हमने खुदा की इबादत करनी है, पाक मास की कुर्बानी गुजरानी है। तो आप उसी तरह से जोश और जज्बे के साथ जहाँ भी हम इंतखाब करेंगे जिस गली में, क्योंकि कुछ ख़ानदान है जिन्होंने हमें कहा कि जी हर दफ़ा इंतज़ाम और तैयारी हमारा ख़ानदान देखेगा, तो अभी इस दफ़ा
मास्टर जी की मुशावरत के साथ जहाँ भी इबादत करेंगे वहाँ पे भी आप ज़रूर इबादत के लिए वहाँ पे आइएगा। आज के दिन के लिए मैं ख़ानदानों का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वेलकम के लिए जो कि आज हमारे दरमियान थे। मैं अफजाल भाई का भी कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से जो काउंसलर भी है हमारे इस इलाके के, गाहे बगाहे भी और जब भी हम ताउन की अपील करते हैं तो हमारे साथ रहते हैं। अफजाल भाई आपका भी शुक्रिया, हमारी मकामी इक्लीसिया का बिशप जी आपका खास कर शुक्रिया। हम तालियां बजाकर बिशप जी का शुक्रिया अदा करते हैं आपकी इस मोहब्बत के लिए और आपकी इस लगन के लिए जो कि आप हमारी इक्लीसिया के लिए करते हैं। थैंक यू। इसी के साथ मैं फजीलत माब आर्च बिशप से दरख्वास्त करूँगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले दुआ करेंगे। दुआ के बाद जो है तो सब अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हैं। बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से एक आदर मतलब खुदाम शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए जो तूने हमें दिया कि आज हम यहाँ मिलजुल कर खुदावंद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए रस्म के लिए आए हैं ताकि इस रस्म के वसीले से खुदावंद काम शुरू हो जहाँ पर गिरजाघर खुदा का घर खुदावंद बन जाए। लोगों की तमन्ना, लोगों की दरख्वास्त हमेशा रही है कि हमें एक खूबसूरत जगह हो जहाँ पर हम उस अनदेखे खुदा की इबादत कर सकें। खुदावंद आज हम तुझसे यही इल्तिजा करते हैं, तू हमारे साथ हो, हमारे काम को बरकत अता फरमा कि जिस काम का हम मिलकर खुदावंद तेरा नाम लेकर शुरू करना चाहते हैं, तेरे ही नाम के वसीले से, तेरे ही बरकत के वसीले से इसे पाए तकमील तक पहुँचाएँ। तो हर एक के साथ हो, खासकर हमारे कॉन्ट्रैक्टर फादर एंथनी जो कि इसके साथ में कॉन्ट्रैक्टर के साथ मदद करेंगे। खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए भी बरकत चाहते हैं जो अच्छी सोच लेकर खुदावंद इस काम शुरू करने को है। हम सब के साथ हो ताकि ये जगह खुदावंद तेरे बरकत के वसीले से, तेरे फजल के वसीले से पाए अपनी बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुँचे और खुदावंद इस इबादत गाह के वसीले से खुदावंद तेरे हुजूर हमारी दुआएं पहुँचे और तेरे बरकत और फजल पूरे इलाके में और पूरे कराची में फैलता रहे। हमारी इस दुआ को सुन, इस काम को बरकत मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। वही दुआ पढ़ेंगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ते। मुकद्दमा की सिफारिश करे सलाम मरियम। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, आबर हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे रूल कुदस का हो। खुदावंद आपके साथ और कादर मतलब खुदा हमारे इस काम को और इस पूरी जमात को बरकत बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से ब्रेकिंग होगी तो हम शुक्रगुजारी का ज़रूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दाई करो, शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो, कर शुक्र यहोवा। जोरदार तालियां। वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसे दा, वडे वडे काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसे दा, जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा, जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा, शुक्र यहाँ अदाई करो, करो शुक्र यहोवा। जोरदार तालियों से पूर्ण सरद दिन के लिए कि जो ख्वाब हम देख रहे थे आज खुदा की रहमत के साथ, खुदा के फजल के साथ, बिशप जी की, फादर जी की, पूरे हमारी पास्टर टीम, हमारे दूसरे काहिनों की कोशिश के साथ
آج وہ خواب پورا ہو